न्यू इंडिया डिबेट में आज का विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। हमारे देश में एक देश एक कानून को लेकर बीते लंबे समय से लगातार बहस जारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, जिसका मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था बनाना है। वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। समान नागरिक संहिता के तहत शादी, तलाक, ज़मीन जायदाद के बंटवारों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की वकालत की गई है। अभी हमारे देश में जो कानून है वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करने को लेकर जितने ऊंचे स्वर उठाए गए, उतना ही इसका विरोध भी है। इन सब के बीच में समझना यह भी ज़रूरी है कि भारत जैसे देश में समान नागरिक संहिता की आखिर ज़रूरत क्यों है। हम मौजूद हैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में और देश के भावी कानून रक्षकों से आज हम जानेंगे समान नागरिक संहिता पर उनकी राय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल मेरा, समान नागरिक संहिता की ज़रूरत आखिर हमारे देश में क्यों है? Uniform Civil Code brings the Indian judiciary in a single way. Like if you are treating different communities differently, it's not the right way. Like our erstwhile Chief Justice of India, H.N. Khare, have always said कि UCC will always be a right way to for the integration of country. And for me, it's like UCC is the only way to bring every community on a single equal platform. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ज़रूरी क्यों है? In my opinion, the principal reason to implement the Uniform Civil Code would be to decrease the burden on the Indian judiciary, simplify Indian laws, and hopefully decrease the gender disparity that exists in this country. Case in point, I would like to point that let's take an example of the maintenance laws that are under CRPC. When the personal laws of people could not come to their aid, there were general laws like the maintenance law. भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे जो लंबित मामले हैं वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, ऐसे में समान नागरिक संहिता कितना मददगार होगा देश के नागरिकों के लिए? Uniform Civil Code is must. First of all, India is a secular country, and thus Uniform Civil Code has to come. Under Article 44, it is mandated to come someday or the other. And India being a secular country, it doesn't make sense to have two different personal laws for same set of people, for different set of people. And then again, you have different for Muslims Sharia, and for Hindus the Hindu Marriage Act and other such acts. For bringing truly secular India, you need Uniform Civil Code. आप में से कोई ये भी मानता है क्या कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है? किसी का ऐसा थॉट है क्या? जी। Pluralism is one of the bedrocks of the Indian framework, and if we look at the Uniform Civil Code, what we are going to see is that a lot of communities and their individual practices are likely to be overridden by a Uniform Civil Code. For example, there are tribes in Northeast India that follow a matrilineal form of succession, and if we do have a Uniform Civil Code, it is likely to see that all of these communities no longer have their own individual practices, and as per the fundamental rights, they do have a right to continue to profess and propagate their own religions. ओके, देखिए सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, और तो यहाँ पर अलग अलग पक्ष हम सुन रहे हैं। कोई और जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मानता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे देश में, क्या कहेंगे? Uniform Civil Code is at best a thing which will just simplify the Indian laws, but for the main purpose that it seeks to serve will not be there. It would be very counterproductive step, as at times the courts have also noted. So if we were to respect the fundamental rights under Article 25 and 26, we would at best codify the personal laws and not club them and put them under the same umbrella of the Uniform Civil Code, because that way we are not going to ensure the secularism by this manner. We would only be blurring the lines between the religious identities which have
existed in India for a long time, and I think they should stay because Uniform Civil Code will only club them together and not do much. We should have a solution-oriented approach to the implementation of UCC. What I believe that the government or like the previous governments or the Law Commission also attempts, or even the Supreme Court or the Delhi High Court for that matter, has attempted to achieve through the UCC are three basic points, which is gender justice, removal of discrimination, and a similar standard of morality for each individual in the nation, which I don't think that can be necessarily achieved through the UCC. आपको लगता है कि कानून यदि आसान होंगे और यदि कानूनों को यदि हम क्लब करके एक जैसा बनाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मानती हैं क्या आप? सर मेरे ओपिनियन में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है या ऐसा कोई कानून आता है जिससे सारे रिलीजन्स में एक ही कानून फॉलो होता है, तो वो कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट करेगा, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस लॉज हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट जाते हैं इन एवरी रिलीजन। एंड आई थिंक अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसके थ्रू ये सारे प्रैक्टिसेस हट सकती हैं एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच आ सकती है, एंड सारे जो लॉज होंगे वो ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डेंस में होंगे। ठीक है, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड यदि आता है तो उससे हम जेंडर इक्वलिटी को मजबूत कर सकते हैं, यानी कि जो लैंगिक असमानता है हमारे देश में उसको हम दूर कर सकते हैं? जी, मैं मानती हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ यूसीसी यू कैन सफिशिएंटली डिक्रीज़ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बायस, क्योंकि अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में तो इट इज़ आर्टिकल 25 विच गिव्स आउट दैट रिलीजन शुड there should be freedom of propagating and professing whatever religion that you follow. But उस clause का अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि it is subject to health, morality and whatever the public distribution accords to. So it means that there can be a limitation to the extent of how much it can be followed. तो उसको हम अगर सिमेट्री में देखें then there is the question of how much importance you can give Article 25 to over Article 21 which provides for personal liberty and right for life. तो ये अगर हम देखा जाए तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन मैनी केसेस कि women have been systematically discriminated throughout the society, and India is a patriarchal society. So if we are to somehow give more importance to rights and liberty of women rather than some orthodoxical areas and avenues which have been followed time memorable, but they are very much decreasing in stature, then by implementing UCC it may be better that we can somehow make help of the women and make help with the gender minorities that are constituting and which are a very important part of this country. ठीक है, तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। जब हम अलग अलग उदाहरण सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे देश में जो हम लैंगिक असमानता की बात करते हैं या फिर जो महिलाओं को कानून के रूप में शक्ति देने वाले मसलों की बात करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना मेजर रोल प्ले कर सकता है? The Uniform Civil Code can very beautifully be summarized by one sentence: one country, one law. While this is applicable in a lot of spheres of law, it still lacks implementation in civil laws, particularly interpersonal laws. While interpersonal laws play a very important role, due to the multiplicity of religion, they also are very diverse for people who subscribe to these religions. It is implicit to state that gender biases are entrenched in these personal laws due to patriarchal normatives, and hence combating this can only be solved through communalization or the conformity of the same to each other. In the case of this, a uniform civil code plays an imperative role as a codification of this nature brings it under Article 13 and hence mandates subscription to the fundamental rights. The fundamental rights are well known to secure these very humanitarian rights such as safeguard against discrimination and gender biases, and hence bring these interpersonal laws which were previously beyond the realm of legislation into a sphere where they could be regulated under these norms, and hence the Uniform Civil Code will ensure strides in this domain. आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे कानून जो कि रिजिड हैं या फिर जो किसी एक कम्युनिटी में या किसी एक जेंडर पे वो ज़्यादा हावी होते हैं तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक जैसी कानून व्यवस्था लेकर आएं? I agree with that fact कि justice should be
be accessible to everyone. And I agree that the UCC does have a lot of benefits, as you have mentioned and as was mentioned by someone else, that maintenance laws have come to the aid of people in the past, and we could expect something similar if UCC was to be enacted. But at the very same time, if we see that these laws are already in place, so if we were to infringe more upon the personal laws, it would take away the essence of the identities that India has long cherished, and these are the matters that these religions do not want to be governed in a general sense. They want their religious identity to be present there. अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सीधा सा सवाल यह है कि हमारा देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से? सर मेरे ओपिनियन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इटसेल्फ अलाउज फॉर शरिया टू एग्जिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सेज दैट देयर इज़ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन, एंड जो शरिया लॉ है दैट इज़ मुस्लिम्स का लॉ, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग इट, प्रोपगेटिंग इट एंड प्रोफेसिंग इट, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्योंकि आर्टिकल 25 उन्हें वो अधिकार देता है. बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, शरिया में कुछ लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है, तो इस केस में आई थिंक पर्सनली कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल, बिकॉज पूरे कंट्री में वो फॉलो होता है, एवरीवन इज गवर्न्ड बाय दैट, सो जस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी शुड नॉट आर्बिटरली फॉलो समथिंग एल्स. ओके, लेकिन फिर जब हम समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो फिर यहाँ तो जो आर्टिकल 25 को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो लोगों को ये डर है खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कि अगर एक देश एक कानून लागू होता है तो फिर शरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा. उस केस में शरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट स्टिल आई फील आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आप स्टिल अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि यू विल लूज़ योर ऑथेंटिसिटी या यू विल लूज़ योर एथनिसिटी, वो स्टिल आपके साथ रहेगी. बट जो डिस्क्रिमिनेटिव लॉज हैं लाइक निकाह हलाला, लाइक पॉलीगैमी, वो सब डेफिनेटली बहुत रिडंडेंट हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, एंड UCC के थ्रू आई फील वो चीज़ सॉर्ट हो सकती है, वो चीज़ ठीक हो सकती है. ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपको लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो उनको दूर करने के लिए समय की मांग है कि इसको ये होना चाहिए? ऑलरेडी हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट है, हमारा लेजिस्लेटर है, वो ऑलरेडी रॉन्ग प्रैक्टिसेस को दूर करने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत हैवी अप्रोच है उसके ऊपर. अगर हम लोग पर्सनल लॉज में से ऑलरेडी इराडिकेट कर रहे हैं, जो हमारा जो धर्म है, जो हमारी रिलीजन है, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो लोगों की एक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई हैं. और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से बेहतर है कि हम जो दूसरे जो कानून ऑलरेडी हैं, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट हमारा पार्लियामेंट करते आया है, कि उन्हीं कानूनों में और पुख्ती लाया जाए, उनको और पुख्ता बनाया जाए, उनको ऐसे इस तरीके से बनाया जाए कि लोग भी उसके साथ ढलते जाएं और जो समाज की प्रगति है वो भी बढ़ते जाए. वो कर सकते हैं. बहुत लंबे समय से जो एक जैसी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, आपको लगता है कि उनको बदलने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाए जाएं जिससे कि कम से कम किसी के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ अन्याय और भेदभाव ना हो? मुझे लगता है अभी कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि जैसे अभी ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, वैसे कुछ हो सकता है. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एन अम्ब्रेला टर्म उसके लिए अपना देश तैयार नहीं है. तो समान नागरिक संहिता पर सभी के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग राय हैं. इन सब के बीच में समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए कुछ और बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत. आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता पर. भारत की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के अलावा अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, ये तमाम सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है. हमारे देश में इस पर इतनी मतभिन्नता या इतना विरोध क्यों है? तो मेरे मुताबिक द प्राइमरी रीज़न वाई डिफरेंट कंट्रीज हैव हैड डिफरेंट अप्रोचेस इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वांट टू डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बिकॉज ऑफ देयर एथनिक आइडेंटिटीज, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन ईच ऑफ दीज कंट्रीज. इंडिया हैज़ अ वेरी यूनिक हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ हाउ डाइवर्स इट इज, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी कल्चर्स इट accommodates. The primary principle around which India operates is that anekta mein ekta.
राइट तो अगर ऐसे देखेंगे तो फिर इसलिए अगर हमें इसी प्रिंसिपल के साथ रहना है तो फिर वी हैव टू अबाइड बाय दीज प्रिंसिपल्स एज वेल। तो मतलब आप ऐसा मानते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है वो अलग अलग धर्म संप्रदाय की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है जी, नुकसान के बारे में थोड़ा कम है, यानी कि ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन के बारे में है ना। तो यानी कि अगर मैं एक कल्चरल बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो लॉज मेरे साथ लागू होंगे वो मेरे कल्चर को रिप्रेजेंट करें। समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं तो वो शादी को लेकर, तलाक को लेकर और ज़मीन जायदाद के जो बंटवारे हैं वो हिंदू, मुस्लिम और जो ईसाई कम्युनिटी है उनको लेकर के सबके लॉज अभी अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि इन सारे मसलों को हमको एक कानून में यदि हम लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो सकती है? There is a concept called problem solution mismatch. Problem is one, but the solution doesn't necessarily fit with the problem. We already have an answer in the form of the Special Marriage Act with regard to marriages. Now this can be applicable to anyone who voluntarily chooses by it. Even Dr. Ambedkar clearly mentioned that the idea of a uniform civil code should not necessarily be a mandatory provision but rather a voluntary one. We have such a solution in the form of the Special Marriage Act and other. So necessarily speaking, it doesn't have to be that this is imposed upon someone, because then it would be very infeasible to maintain it. Without even, let's also notice that we don't exactly know what the Uniform Civil Code means. It is not defined in anywhere in the Constitution, or we don't have a clear-cut definition. नहीं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है जो ये कहता है कि देश के सभी नागरिकों को एक कानून, मतलब एक देश एक कानून की बात समान नागरिक संहिता करता है। आपको कुछ और इसके आंसर में कहना है? Definitely, while the Article 44 mentions that, it doesn't give further detail, but there are, all that I'm saying is, while my friends put up very good points, there are alternatives to this. हमने देखा हलाला का जिक्र यहाँ पर हुआ, तलाक की बात यहाँ पर कही गई। मोटे तौर पर हमारे देश में जो भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक है उसमें पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सभी को समान न्याय की व्यवस्था हो। आपको लगता है उसमें एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है? Sir, actually, if we look at the Shah Banu case, we look at the other cases that you mentioned, the Supreme Court themselves has given very ambiguous decisions on the unconstitutionality of personal laws, of religious personal laws. Now there is a case of Pannalal Bansilal Pitti, and there is a case of Daniel Latifi, in which the Supreme Court has held that even though a UCC is desirable, it is not feasible. क्या आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता से धर्मनिरपेक्षता को बल मिलेगा? ऐसा है क्या? I totally believe in that. First of all, this different set of laws, different personal laws, is dividing the country further. These people are getting divided into separate communities, and if there's one law, one set of laws for each and every community, they will be united and coming under one umbrella. Every part of the country, irrespective of them being Hindu, they have different customs, different traditions which have been handed over to them by their ancestors. And I think that no matter how small the community within the religious Hindu religious ecosystem is, every community, every sampradaya has the right to be represented and to have its own laws and not to be overridden by some majority law of the majority sampradaya of Hindu. भारत जैसा देश है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो एकदम से UCC ले आना would be very difficult. But what we can do is कि there should be steps. जैसे वहाँ पे भी मेरे एक मित्र ने बोला कि पहले कोडिफिकेशन होना चाहिए, जैसे हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन हुआ, उससे बहुत रास्ते खुल जाते हैं। आप अपने, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपने बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताए, निकाह हलाला, पॉलीगैमी, शाह बानो का केस, तो आप अपील कर सकते हैं, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का द्वार खुल जाता है उस अगर आप कोडिफाई कर देते हैं अपना लॉ। हमारा देश का कानून डेफिनेटली इट gives importance to every religious group and minorities too, but at the same time I think grassroots level pe there is a need of sensitization, and we being so privileged, we do not realize that there are some issues which are not seen. हम पार्लियामेंट में बैठ करके हम एक छोटे से गांव में क्या इशू चल रहा है, क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हम नहीं देख पाते। सो समटाइम्स वी make decisions which are in our favor, but that is not very favorable for that society. I don't disagree that we require a code that applies equally to different sects of society, but
it is the manner in which we go about it. I believe that it has to be done in a sensitive manner. And rather than directly imposing it from the top, I think we need to start from the ground level. We need to send out teams at the ground level in order to work with local communities, in order to change their personal laws, so that we're at a point in which should have been done years before. But now we have to start somewhere. So now is when we have to start it from the ground level. We have to take a bottom-up approach rather than a top-down approach, so that we get to a point where we're imposing a law that is imposed equally on equals and not like it's not imposed on unequals, because that is what Article 14 secures for us. That's equality with equals, right? हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को जब हमको बढ़ावा देने की हम बात कर रहे हों, या फिर संविधान को और ज़्यादा बेहतर बनाने की हम बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था को और हम मजबूती देने की बात कर रहे हो, तो उसमें कॉमन सिविल कोड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। या फिर जैसा कि बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया कि ज़रूरत है लेकिन सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जाए। आप सहमत हैं क्या इस बात से? सर मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भारत में आएगा या लागू होगा या फिर उसकी तैयारी भी होगी, तो वो हमारे काफ़ी सारे अलग अलग धर्मों को एक साथ एक लाइन में या फिर एक कहें एक प्रवाह में लाने में मदद करेगा। एक मेरे मित्र ने भी कहा कि अभी हमें और टाइम लगेगा कोडिफाई करने में, बनाने में। मैं पूछना चाहूँगा कि और कितना समय लगेगा? लाइक हम आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, हमारे से पिछड़े जो देश थे वो भी ऐसे कानूनों को हटा चुके हैं जिन्हें हम अपना चुके हैं, मतलब जिन्हें हम अभी भी अपनाते हैं, हम हमारे कोर्ट्स में वो अभी भी माने जाते हैं। जैसे कि मेरे सीनियर ने एग्जांपल लिया अमेरिका का। आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ इजिप्ट। वहाँ पर भी प्रीडोमिनेंटली शरिया कम्युनिटी वो कम्युनिटी थी जो शरिया लॉ फॉलो करती थी। इवन उन्होंने भी आफ्टर 1950s शरिया लॉ को हटा के एक प्रॉपर सिविल कोड लगाया। तो मेरा सवाल ये है कि भारत में रहते हुए क्या कमी है? हम लोग हमें आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, हमें अलग अलग कम्युनिटीज़ को ध्यान रखना है, ये मैं मानता हूँ, सबसे सहमत हूँ कि अलग अलग धर्मों को हमें साथ लेके चलना है। पर जब बात आती है सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी फॉर ऑल की, अगर उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है तो मेरा मानना है उसे होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है कि शरिया कानून 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है वो ये कहता है 1872 का है, और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। ये जो तमाम सारे अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग जो कानून हैं, क्योंकि ये बात यहाँ पर इन सारे कानूनों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये व्यक्तिगत ज़िंदगी को भी प्रभावित करते हैं, और उसमें शरिया का कुछ अलग कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट कुछ अलग है, और ईसाई का कुछ अलग है, पारसियों का अलग है। ये जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ये व्यक्तिगत जो इंसान हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं और क्या होना चाहिए? सर जैसा कि आपने बताया, जो अलग अलग कानूनों के आपने नाम लिए, वो अलग अलग साल में काफ़ी साल पहले बने हुए थे। बट जब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है लेवल, अलग अलग हम धर्मों को बराबर की सम्मति चाहते हैं, तो जो नीचे तबके के लोग हैं जिन तक जस्टिस नहीं पहुंच पाता है, ये जो ट्रेडिशंस हैं ये फॉरमोस्ट सालों से चले आ रहे हैं। पर अब समय है कि जो कम्युनिटी हमारी है, जिस फुट पे हम स्टैंड करते हैं, हम जस्टिस डिज़र्व करते हैं और हम ले सकते हैं। बट कुछ तबके ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने शाह बानो का केस बताया, तो मुस्लिम विमेन की जो लेडीज़ थी उनको एलिमनी मिलने था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से यूसीसी को होना ज़रूरी है। हमारा देश जितने खुले विचारों का है, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत के कहने के लिए कब तक इंतज़ार करेंगे? किसी भी गलत चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी गलत चीज़ को एड्रेस करने के लिए इफ़ वी नीड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, देन इट शुड बी ब्रॉट इन। बट जो कंसर्न्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ वो तब भी वहाँ पर हैं। जब तक उन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाता, या फिर जब तक उन कंसर्न्स को एलिवेट नहीं किया जाता, uniform civil code will be a step which would mean that we are skipping a few steps and jumping to conclusions. भारत वो देश है जिसने दुनिया के सताए हुए लोगों को शरण दी अपने देश में। भारत वो देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। भारत वो देश है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की युक्ति पर काम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं और ज़्यादा मजबूत हों, जिससे कि जो भारत के नागरिक हैं उनको एक अच्छा और सुखी जीवन हम दे सकें, शांतिपूर्ण जीवन वो जी सकें। यहाँ पर बात हमने समान नागरिक संहिता पर की। यहाँ पर किसी दुनिया के देशों से तुलना वाली बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि जो हमारे देश में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग हैं उनको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ये संविधान वो अधिकार देता है, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं,
जो गलत व्यवस्थाएं हैं, जो गलत परंपराएं हैं, कम से कम उसमें भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम न्याय कर सकें, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ हमने पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, लेकिन ये जनता जनार्दन तय करती है कि हमारे देश में जो व्यवस्थाएं होंगी, जो कानून होंगे, वो किस तरीके से होंगे। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही सनसेट टीवी पर आप गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से समान नागरिक संहिता पर यह कार्यक्रम आप सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।